2022, there were approximately 3 million Afghans living in Pakistan. Around 1.4 million of them are proof of registration cardholders. Approximately 840 hold an Afghan citizen card, and an estimated 775 are undocumented. As of June 2022, according to UNHCR, 314,866 registered Afghan refugees living in Balochistan. "35-year-old Mohammed Tahir is an Afghan refugee born in a refugee camp in Quetta. Besides running a junkyard in Bashir Chowk, Quetta, he is also a private school teacher, social worker, and member of the Integrated Trauma Support Group. He considers the service of his Afghan refugees brothers as his peace of mind. بس ما چې خالي هغه انسان ته چې نوې وای روغ لیونی دي نور په ظاهر بشکاره کیږي چې سم سړی دی لیکن نور د ټینشن ډک په دا مهنګایي کې انسان خپل د اولاد په نفقې پسې ګرځي هغه نشي پیدا کولی ظاهره د بجلي بیل سي یا د ګیس سي د اوبو مسلې دي نو د صحت ته سي بیا د کورونه هم پسې ونړېږي نو بهر خوار چې پریشاني نه وکړي نو نور به څه وکړي د کومه خوا چې راپوره کړي روزګار پورې خبره ده او بل دلته خو نو غربت دی خو دغه ځای چې مثال انسان څه دغونه وي هغه خوا هلته پاتې شوي دي نه چې ځای بار مثال ته کور کې وي هر شی وو هغه ټول هلته پاتې شوي अगर मैं आपको कहूँ लगभग 40 साल हो रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं किसी का कोई राशन ख़त्म हो जाता है या कुछ और हो जाता है या बाहर से जो है उसकी कमाई नहीं आ रहा है आमदनी ख़त्म है तो कम से कम वो समझो एक ज़हनी उस पर मुब्तला हो जाते हैं ज़हनी बीमारी का जो है वो शिकार हो जाता है तो यहाँ पे बहुत इश्यूज़ है वो ख़वातीन की भी यहाँ पे है कि मसलन ख़वातीन यहाँ पे घरों में समझो घर का काम है वो उसके बाद जो है फारिग बैठे हुए उनके पास जो है काम काज नहीं है तो खामखा इस तरह मुश्किलात बहुत है और बच्चे जो है अक्सर जो है वो बच्चे जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल फीस वगैरह वो भी घरों में बैठे खामखा किसी न किसी और आदत में मुब्तला हो जाते हैं तो इस वजह से जो ज़हनी बीमारी है वो बहुत है यहाँ पे जो अक्सर का तो कबाड़ी का काम है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के पास ज़मीनें वगैरह नहीं कि वो खेती करे तो अक्सर का जो है जॉब वगैरह भी नहीं कर सकते तो ये सब जो है अक्सर जो है या रोज़ाने वाले या कबाड़ी वाले जो गोदाम वगैरह करते हैं बस यही लोग हैं रिसेंटली जो अभी एक सेंटर बनाया हुआ है याद और रमना वालों ने जो नफ्सियाती उस पर बच्चों के हवाले से वो बनाए बच्चों को वो कर रहे खिलौने वगैरह लाए कि मसलन वो उसमें मसरूफ़ हो जाए जो उसका जो ज़हनी वो है थोड़ा कम हो जाए और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मेरा क्लास फेलोज़ वगैरह जो मैं देख रहा हूँ उन लोगों को वो भी जो बेचारे दर बदर घूम रहे हैं मसलन को भी जॉब नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को फिर दिल की तसल्ली होता है कि भाई वो लोकल है फिर भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है हम लोग तो अल्लाह हम लोगों को बचाए बस کور کې که یو کور پرېږدي بل کور کې خامخا یو نشه شته د دغه مشکلات د وجې یعنی دغه اوس د کورو ته چې وګورې په یو کور کې که نه په بل کور کې خامخا نشه شته چې مثلا هغه نشه کوي یا داسې دغه کوي خاص طور ځوانان دي تقریبا هغه دغه ینګ ځوانان تقریبا 15 سال څخه نیولې تر 21 22 سال پورې دغه کسان وخت دي "19-year-old Marzella is considered a source of honor and a messiah for her family and all Afghan refugee living in Balochistan.
She is a surgeon doctor serving her communities as well as a social worker. She is also a member of the Integrated Trauma Support Group. Despite being a refugee, poverty and other difficulty, she has become a doctor, but she often feels inferior because of being a refugee and considers her future unknown. نباشه چی میگن افغانستان مثل یک مرگ وریش اجل که نه یک دفعه تره میکشه اون میتریش افغانستان در الله پاک معلوم است که امروز آرام میشه 100 سال میشه او در او معلوم است बेशक جنجالا هست کلمکلا هست उधर तो खास बेरोजगारी के लिए लोग भाग गए बाल बच्चा सब हालांकि कि माशाल्लाह खूबसूरती से बिल्कुल कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें झगड़ा वगैरह है। हर किसी कोई भी नहीं बोलते कि हम अपने मुल्क से बाहर निकल जाए ना। मेरे भाई को हम दोनों को रोका, देखो लेडीज जब हो जाए उसको नहीं रुकना चाहिए ना, तो इसको रोका, बोला कि क्या कर रही हो इधर, इस तरह उस तरह है ना। फिर भाई मैंने बोला भाई हम लोगों के पास कार्ड है, मुझे भी तंग किया ना। मैंने बोला भाई हमारे पास इसके पास भी कार्ड है, तो हम लोग जा रहे हैं सेंटर जा रहे हैं तो अपनी स्टडी के लिए। तो उसने कहा कि किस तरह नहीं, आप लोग क्यों इधर रह रही हो, आप लोग तो अफ़गान हो, आप लोग तो महाजिर हो, तो आप लोग उज़्बक लोग क्यों इधर रह रही है। तो बहुत इस तरह बोला, मुझे इतनी गुस्सा आ गई। तो मुझे क्या बोलना था, वो बुज़ुर्ग था ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला बस खैर है, छोड़ो। भाई को बोला छोड़ो, इसका कार्ड ले लिया, थोड़ा सा हम लोगों को उधर रुकवाया, बोला इस तरह फिर हमारा बच्चे वो इसके साथ पास किए हो स्कूल यूनिवर्सिटी वो अफगानी कार्ड में माजिर कार्ड अभी हम लोग नहीं कर सकते, गरीब लोग ही वो हमारी ख़ास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग रिफ्यूजी हैं। हम लोग को और इधर तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर जितना भी कर लें, जैसे कि हम लोग अपनी तालीम, ये लोग कहते हैं तालीम क्यों कंप्लीट कर लें। अगर तालीम भी कर लें, आखिर हम लोग गद्दा गाड़ी लेंगे, आखिर हम लोग जो है ना दुकान पे जाके बेचेंगे, रेली लेंगे। इससे अच्छा है कि अपनी पहले से अपने मुस्तकबिल बना दें। मैं ख़ुद एक सर्जन डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं अपनी अंदर ख़ुद महसूस करती हूँ क्या फ़ायदा मेरे पढ़ने की। मैंने ख़ुद लड़कियों को बोला है अगर आप लोग स्कूल पढ़ना चाहती हो नहीं पढ़ लो। मैंने काफ़ी मुझे गुस्सा भी आ गया, मैंने बोला था, क्योंकि मैं बोला क्यों, मैंने बोला क्योंकि हम लोगों के इधर वो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जगह जॉब नहीं है। अपनी पहचान तो गुम नहीं करेंगी, जो हम हैं वही पे अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। मैं अफ़गान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अफ़गानिस्तान में बहुत खुश हूँ, लेकिन इस बात पे नाराज़ हो कि हम लोग रह रहे हैं इधर क्यों नहीं। हमारी पैदाइश, हमारे सर्टिफिकेट सब कुछ यहीं के, लेकिन जैसे भी जहाँ भी जाए, लेकिन ये अभी हमारी जो है ना घर बन गई है ना। अभी जिधर भी जाए तो हम लोग इधर, जैसे मैं पहले अफ़गानिस्तान गई थी, वो भी मेरे मुल्क है, ये भी है, लेकिन मैंने जो है ना बहुत उधर महीने गुजारा। मैं हर दिन जो है ना इधर के ख्वाब देखती, मतलब मेरे ख्वाब में अभी तक यही सारे यही पे थी। फील करती काश हमारी भी इसी तरह जगह होती, काश हम लोग भी इसी तरह ज़िंदगी गुजार लेती, काश हमें भी बाहर की जाने की इजाज़त मिलती, काश हमारे पास भी गाड़ी होती। तो
तो ये सारी एक ज़हनी दबाव है जो हम लोग करते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा, मेरे दिल में शायद कोई उम्मीद था अभी, लेकिन वो उम्मीद मैं क्या बोलूँ, अभी मैं तो कुछ इस तरह नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं, ये लोग कहते हैं कि अब अफ़गानिस्तान जाओ, अब आपको अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी तो आप वही की डॉक्टर बनोगे। क्या फ़ायदा जाने का, जब मैं इधर पढ़ाई उधर क्या करूँ जाके। एक जगह पे कैद है, तो कैदियों की तरह हम लोग नहीं जीना चाहते। हम लोग एक आम पाकिस्तानियों की तरह, मतलब जो है ना, हम लोगों ने जीना, मतलब ज़िंदगी गुजारना है। हम लोगों ने इसी तरह जो है ना, हम लोगों ने रहना है। मतलब आवाम से कुछ लोग से मेरे दिल ख़राब है जो इस तरह बातें बोलते हैं, फिर मुझे दुख मिलते हैं। मैंने बहुत दुख महसूस किया। तो जब कभी कुछ बोलती, मैं यूनिवर्सिटी, मेरी फ्रेंड्स थी, सबसे स्टार्टिंग में उन लोगों ने बोला कि आप अफ़गानी हो, अफ़गानी आके हमारे मुल्क में इस तरह किया। अगर मैं बोलूँ, मेरे रोना भी आती है, लेकिन मैं अभी कंट्रोल में हूँ। The 35-year-old Afghan refugee musician and singer Najib Khattab always try to bring love, calm, and happiness to others' faces through singing and music, due to the bitter and harsh life of a refugee. He is worried about his art and what will be his future. महाजरत की ज़िंदगी बहुत तल्ख़ होते हैं और बहुत सख्त होते हैं। तो हमारे पास और तो करने का कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही म्यूज़िक तो है इनके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी तो महाजरों के लिए कुछ है ही नहीं। तो इससे ज़रा आपको पता है, एक तो महाजरत की ज़िंदगी, सख्ती और तलख़ियाँ उनकी बीच में, जो उनका दिमागी डिप्रेशन उन लोगों का होता है, सबका, ये मुझे पता है। मैं ख़ुद इसका वो हूँ, क्योंकि जैसा भी हो, अपना मुल्क अपना होता है, अपने मुल्क को और दूसरी जगहों पे काफ़ी डिफरेंट होता है। फिर भी अपने मुल्क की याद तो आ जाता है। काश ये हमारा, कभी कभार हम लोग पिकनिक पॉइंट पे निकल जाते तो हम ज़रा तंग लगते हैं हमारे लिए। हम कहते हैं काश ये हमारा मुल्क होता तो ये ज़मीन हमारा होता, ये बागात हमारा होता, हम खुद ऐसे ही बैठते होते, हमेशा हर दिन हमारा बैठना उठना इसी जगह पे होता। म्यूज़िक जो है, इससे उनको एक रिफ़्रेशमेंट उनके जहन को मिलते हैं। तो बहरहाल अगर म्यूज़िक का प्रोग्राम या म्यूज़िक का जो तरतीब है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और या कोई जो सकाफ़ती इदारे हैं या कोई गवर्नमेंट के इदारे हैं या किसी जैसा यूनिसेफ वग़ैरह, कोई जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के सपोर्ट करता है, ये लोग एक बरनामा या एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो जिसमें इस तरह म्यूज़िक या इसके अलावा और भी एंटरटेनमेंट के कुछ अच्छे खासा वो मिल जाए। इससे जो इनका जो ज़हनी तशद्दुद जो इन पे होता है, ये गुम हो सकता है। वरना ये आज तक हम लोग 40 साल से भी ज़्यादा गुज़र गया। मेरा पैदाइश से यही था। मैं आज तक ये समझता हूँ मैं एक बेसरनविश्त इंसान हूँ। मेरा आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं आज तक। हालांकि मेरा पैदाइश यहाँ पे हुआ, तो क्योंकि मुझे मेरा हक अभी तक नहीं मिला।